Hare Krishna, Namaste devotees. So, welcome to our session. So, we will start with the Kirtan and then we will begin our session. Hare Krishna. Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namini Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravanika Nirvishesha Shunyavadi Ashtadishatadini Namaste Saraswati Devi Gauravanika Nirvishesha Shunyavadi
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Madhav, Radha Madhav, Jayo Radhe. Jayo Radha Madhav, Radha Madhav, Jai Radhe. Jayo Jagannatha, Jayo Jagannatha, Baladeva, Jayo Subhadra. Jayo Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jayo Subhadra. Jayo Narsingha Dev, Jayo Narsingha Dev, Narsingha Dev, Jayo Narsingha Dev. Jayo Narsingha Dev, Jayo Narsingha Dev, Narsingha Dev, Jayo Narsingha Dev. Jayo Prahlad Maharaj, Jayo Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jayo Prahlad Maharaj. Jayo Prahlad Maharaj, Jayo Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jayo Prahlad Maharaj. Jayo Pancha Tattva, Jayo Pancha Tattva, Jayo Pancha Tattva, Jayo Pancha Tattva. Jayo Pancha Tattva, Jayo Pancha Tattva, Jayo Pancha Tattva, Jayo Pancha Tattva. Jayo Vrindavan Dham, Jayo Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jayo Vrindavan Dham. Jayo Vrindavan Dham, Jayo Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jayo Vrindavan Dham. Jayo Jayo Prabhupada, 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 Jayo Jayo Prabhupada. Jayo Jayo Prabhupada, 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 Jayo Jayo Prabhupada. Jayo Jayo Gurudev, 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 Jayo Jayo Gurudev. Jayo Jayo Gurudev, 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 Jayo Jayo Gurudev. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Guru Shri Prabhupada की जय, संत कोटि वैष्णव वृंद की जय. Hare Krishna. हरे कृष्णा एंड प्रणाम डियर डिवोटीज. सो आप सभी का आज के इवनिंग सेशन में स्वागत है. और पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है और उसको हमको कैसे पाना चाहिए, और किस प्रकार से जो वेद हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया, भगवान ने इस्टेब्लिश किया, और वेद भगवान से आते हैं, और हमको जो ये ज्ञान है वो वेदों में से पाना चाहिए एक आध्यात्मिक गुरु की मदद से. सो आज उसी के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे. ओके, तो आज उसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे. हमारे पिछले सत्र से जो प्रश्न उत्तर थे वो रह गए थे. क्वेश्चन एंड आंसर्स आर स्टिल लेफ्ट. So we will continue with our last week session. So I will share my screen. Hare Krishna Rajdeep Prabhu.
तो शुरू करते हैं। हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम नामामृत से हरि नाम के बारे में पढ़ेंगे और हरि नाम की महिमा के बारे में, और उसके बाद हमारे पिछले सेशंस की तरह हम एक राउंड जपा का करेंगे। सो कैन समबडी रीड? राहुल प्रभु, राजदीप प्रभु, आप में से कोई पढ़ सकता है? हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी। Yes, Prabhuji. So, because Kali Yuga is such a degraded and miserable age, Lord Chaitanya advises everyone simply to chant Hare Krishna. According to Vedic conception, there must be men in society who are factually Brahmins capable of expanding the real truth. If everyone becomes a Shudra, the absolute truth cannot be understood. It is said that at the present moment in Kali Yuga, everyone is Shudra. Kalau Sudra Sambhava, and it is very difficult in this age to find qualified Brahmins, for they are very rare. There is practically not a single qualified Brahman in this age. O learned one, in this iron age of Kali, men have but short lives. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. Srimad Bhagavatam 1.1.10। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है कि according to Vedic conception there must be men in society who are factually Brahmins capable of expanding the real truth। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो यहाँ पे जैसे मेंशन्ड है, जो ब्राह्मण होते हैं, वो हमको रास्ता दिखा सकते हैं और हमको जो ज्ञान है उसके बारे में बता सकते हैं। और क्योंकि जो बाकी के क्लासेस होती हैं, जो बाकी के जो वर्ण होते हैं, जो पुराने सिस्टम में जो वर्णाश्रम होता था वो इसी प्रकार से होता था कि जो उनकी जो क्वालिटीज के हिसाब से और उनके जो काम के हिसाब से वो डिवीजन होती थी, जो कि अभी इस एज में वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है बट वो है नहीं, क्योंकि इस एज में कोई भी ब्राह्मण नहीं है। देखिए क्या लिखा है, कलो शूद्र संभवा, कि सभी जो हैं दे आर ऑल शूद्रस, देयर इज नॉट अ सिंगल क्वालिफाइड ब्राह्मण which is left।
एंड तो ये जो लक्षण बताया गया है, जो सिम्टम बताया गया है, वो कलयुग के बारे में अभी ये बताया गया है। और देखिए लास्ट में क्या लिखा है, श्रीमद् भागवतम कह रही है, ओ लर्नड वन, इन दिस आयरन एज ऑफ कली men हैव बट शॉर्ट lives। तो हम इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कि जो एज है वो इस युग में घटती ही जा रही है, क्योंकि हमको ऐसा लग सकता है कि वो पिछले से अभी की जो हेल्थ जो फैसिलिटीज हैं वो बढ़ गई हैं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि जो अगर हमने पिछले सेशन में भी चर्चा करी थी कि जैसे जो पिछले युग होते थे, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग आता है। सतयुग में जो एवरेज एज किसी मनुष्य की होती थी वो होती थी 1 लाख साल। यस, सो 1 लाख साल होती थी सतयुग में एज, और उसमें एंड दैट इज वाई उसमें जो तरीका बताया गया था आत्म साक्षात करने का, सेल्फ रियलाइज होने का, वो था मेडिटेशन। अब ध्यान कर सकते हैं। और जो त्रेता युग है उसमें जो एज थी, एज वो घट के 1 लाख से 10,000 साल हो गई। और जो द्वापर युग उसमें 1,000 साल हो गई। और उसके बाद जो कलयुग है, तो कलयुग में जो एज है वो सिर्फ 100 ईयर्स है। और अब हम ये भी देख सकते हैं कि अब तो वो 100 भी नहीं रह गई, और ऐसा प्रिडिक्टेड है कि वो आगे जाके और कम हो जाएगी, एंड इट विल ड्रॉप डाउन टू 20 और 30 ओनली। कैन यू इमेजिन कि इस इतनी शॉर्ट लिव्ड हो जाएगी, जो मनुष्य का जो जीवन है वो इतना हो जाएगा। और अभी हम देख सकते हैं एवरेज एज इज ऑलमोस्ट 65-70 और अराउंड 75। इससे ज्यादा नहीं जीते आजकल, एवरेज अगर हम बात करें तो। जब एक युग से दूसरे युग को प्रोग्रेस होती है, लाइक इफ सतयुग से द्वापर युग की तरफ सतयुग से त्रेता युग की तरफ जाते हैं, तो सतयुग की स्टार्टिंग में 1 लाख थी, एंड देन धीरे धीरे कम होती होती 10,000 हुई। ऐसा नहीं है कि एक युग में 1 लाख और दूसरे युग में बिल्कुल ही 10,000। सो ये धीरे धीरे कम होती है। ऐसे ही हम कलयुग में भी अगर देखें तो जब कलयुग की स्टार्टिंग हुई थी तब एवरेज 100 ईयर थी। अब कम होते होते अब अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 60 या 70 ईयर्स है। देखिए आगे आगे और वर्णन किया है कि all men have but short lives, they are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky and above all always disturbed। तो ये लक्षण हैं कलयुग में इन मनुष्य के, कि कॉरलसम है। कॉरलसम का मतलब है कि हर जगह झगड़ा हो रहा है, एवरीवेयर देयर इज अ डिबेट और कॉरल विच इज हैपनिंग। तो इसको हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि अभी अगर आप टीवी ऑन करके कोई न्यूज चैनल चला लेंगे तो वहां पे आपको सिर्फ बहस ही बहस दिखेगी। पूरी दुनिया में जो चल रहा है वो सिर्फ बहस चल रही है। देयर इज नो पॉइंट which is there, but they are all making quarrels. Everywhere there is a quarrel which is happening, nothing more। they are lazy, misguided because जो हमारे जो लीडर्स हैं उनको ही नहीं पता कि हम किस प्रकार से उनकी जो उनको शासन है जो चलाना है, और जो सही ज्ञान है किसके बारे में बताना चाहिए और क्या देना चाहिए। Unlucky and above all always disturbed, there is always a kuntha, there is always some anxiety within us, and there is at each and every step there is some danger। पदम पदम यद विपदम, तो ये आता है हमारे शास्त्रों में। तो ये सिम्टम बताया गया है कलयुग में। और हम समझ सकते हैं कि इसको पढ़ने का हमारा जो पर्पस है वो ये है कि इस एज में इतना कुछ होने के बाद हमारे पास सोल्यूशन क्या है। तो आगे प्रभु जी, कैन यू कंटिन्यू, आगे पढ़ते हैं। Yes, Prabhuji. गो ऑन। The people in this age are very short-lived and slow in understanding spiritual life. Actually, human life is meant for understanding spiritual values. But because everyone in this age is a Shudra, no one is interested. People have forgotten life's real purpose. The word manda means both slow and bad, and everyone in this age is either bad or slow or a combination of both. People are unfortunate and are disturbed by so many things. According to Srimad Bhagavatam, there will eventually be no rain and consequently a scarcity of food. The governments will also levy very heavy taxes. The characteristics of this age predicted by the Srimad Bhagavatam are already being experienced to some degree. Since Kali Yuga is a very miserable age, Chaitanya Mahaprabhu
who is Krishna himself, advises everyone simply to chant Hare Krishna. थैंक यू प्रभु जी. So देखिए ये जो यहाँ पे सिम्टम्स लिखे हैं तो हम देख सकते हैं कि कुछ डिग्री तक हम इसे ऑलरेडी इसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा है द गवर्नमेंट विल आल्सो लेवी हैवी टैक्सेस. टैक्सेस तो गवर्नमेंट लेवी कर ही रही है, लगा ही रही है, बट देयर इज नथिंग व्हिच इज हैपनिंग. किसी भी तरीके से सोल्यूशन नहीं मिल पाता एंड एवरीथिंग कम्स डाउन टू सिटीजंस एंड देयर विल इवेंचुअली बी नो रेन एंड कॉन्सिक्वेंटली अ स्कार्सिटी ऑफ फूड. सच कितनी सच है आजकल ये बात. और कहीं पे रेन बिल्कुल नहीं है, कहीं पे रेन बहुत ज्यादा है कि बाढ़ आ जाती है. अभी हम देख सकते हैं कि अभी आज के कुछ ही ये आजकल के हफ्ते में जो कुछ हो रहा है, पिछले हफ्ते में, पिछले महीने में भी जो हुआ, बाढ़ आई इतनी जगह हिंदुस्तान में, बहुत सारी जगह पे बाढ़ आई. और राजस्थान में और अभी उड़ीसा में भी बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशंस है. बिहार में भी इट इज सो मच, एवरीथिंग इज सो अफेक्टेड. असम में एवरीथिंग इज सो मच अफेक्टेड बिकॉज ऑफ रेन, हेवी रेन्स एंड एवरीबॉडी इज सो डिस्टर्ब्ड. एंड यहाँ पे देखिए क्या मेंशन है, द वर्ड मंद. तो मंद आता है मंद सुमंद मतयो से, और ये हमारे श्रीमद् भागवतम में मेंशन्ड है. जो वर्ड मंद है, मंद का मतलब है एक तरह से यू कैन से डल, स्लो एंड बैड. So everybody in this age is a combination of both the things here, कि either bad or slow or combination of both. So इसीलिए तो जो इस युग में जो हमको solution दिया गया है, that is also because the जो negative factors हैं वो इतने ज्यादा हैं, और तो इसीलिए जो solution दिया गया वो बहुत ही आसान और easy दिया. वो इसीलिए क्योंकि already there are so many problems which are there, and अगर हम इसको नाप के देखें, इसको हम measure करके देखें, तो it will be very difficult अगर हम ऐसे processes को follow कर सकें जो हमारे वेद शास्त्रों में दिए गए हैं, जो कि पिछले युगों में होते थे. और इसीलिए इस युग में सबसे आसान तरीका जो हमको दिया गया वो ये जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है, जो स्वयं भगवान है, और जो इस भौतिक जगत में 500-550 साल पहले भारतवर्ष में ही और नवद्वीप में आए, प्रकट हुए थे और अवतरित हुए थे. और उन्होंने ही ये जो आंदोलन है उसकी स्थापना करी और हरे कृष्ण महामंत्र को दिया, ताकि एक गोल्डन एज शुरू हो सके और एक आसान सा तरीका सबको मिल सके, ताकि हम इन सब प्रॉब्लम से इसका रियल सोल्यूशन निकाल सकें और जो जीवन का जो लक्ष्य है उसे पुनः स्थापित करके उसे पा सकें. आगे पढ़ते हैं. तो देखिए ये बृहद नारदीय पुराण से आया है. हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा. In this age of Kali, there is no alternative for spiritual progress other than the holy name of the Lord. So देखिए इसको 3 बार बताया गया है, और 3 बार अगर कुछ भी हम किसी को बात बोली जाती है, बताई जाती है, तो वो बहुत ही एम्फसाइज करके बताई जाती है कि ये तो पक्का है, दिस इज द परफेक्ट थिंग. अगर हम किसी चीज को 3 बार बताते हैं, और शास्त्रों में भी यही है, वर्णन है. तो देखिए क्या बताया गया है कि इस युग में कोई और तरीका नहीं है सिवाय भगवान के नाम लेने के अलावा. देयर इज नो अदर alternative for spiritual progress other than the holy name of the Lord. This process is not Chaitanya Mahaprabhu's invention, but advised by the Shastras and Puranas. The process for this Kali Yuga is very simple. One only chant the Hare Krishna Mahamantra, teachings of Lord Kapil, the son of Devahuti. So, तो हमको यही करना है, that what we have to do is we have to accept this process, and because it is not that कि हम ये समझ लें कि ओके चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया तो सिर्फ उन्होंने ही दिया. ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो शास्त्र हैं उसमें भी मेंशन है. जैसे कि ये ही आ रहा है, ये जो श्लोक है ये बृहद नारदीय पुराण से आ रहा है, और इसलिए जो आचार्य होते हैं वो
वो सब कुछ उस प्रकार से करते हैं जो शास्त्रों में दिया गया होता है, क्योंकि उसको हम ठुकरा नहीं सकते या फिर उसको हम गलत नहीं मान सकते, बिकॉज दे 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 एस्टेब्लिश द ऑल whatever they say from the शास्त्रस, क्योंकि वो जो भी कहते हैं वो शास्त्र से आता है, और स्वयं भगवान ही क्यों ना कहें तो वो भी शास्त्र से कहते हैं, क्योंकि क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई उसको उनको माने ना माने, बट शास्त्रों को सब मानेंगे, तो उन्होंने जो कहा तो वो भी शास्त्रों से आता है, तो उन्होंने जो कहा उसमें और शास्त्रों में कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि शास्त्र भी स्वयं भगवान से आते हैं, और जो शास्त्रों में कहा गया और भगवान की वाणी उसमें कोई अंतर नहीं है। और तो इसी प्रकार से हमको जो ये रास्ता बताया गया है, जो ये तरीका हमको बताया गया है हरि नाम का जप करने का, और ये हमको अपनाना चाहिए, और इस बहुत ही आसान इसकी विधि है, और हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस एक अगर हम जप नहीं कर रहे हैं तो हमको दिन में एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, और अगर हम कर रहे हैं तो हम उसे बढ़ा सकते हैं, अगर हम एक कर रहे हैं तो उसे 2 कर सकते हैं, और जो अगर हम 2 कर रहे हैं तो उसको हम 4 कर सकते हैं, इस प्रकार से जिस प्रकार से भी हमारी परिस्थिति है, और हमको उसके अकॉर्डिंग उसे करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो अब हम एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, और आई होप आप सबके पास जपमाला है। अगर आप में से किसी के पास जपमाला नहीं है तो तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए, तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करते हैं। आई थिंक अर्पिता माता जी के पास नहीं होगी। हरे कृष्णा जी। अर्पिता माता जी हमको आई थिंक आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम माता जी का स्वागत करते हैं, और आप में से बाकी सबके पास आई होप जपमाला है, तो मैं अर्पिता माता जी के लिए एक बार दोबारा बताऊंगा कि कैसे करते हैं। सो माता जी, जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, तो ये इसमें 16 शब्द हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्द मिला के एक मंत्र बनता है हरे कृष्ण महामंत्र, और इसको अगर हम 108 बार करें तो एक माला हो जाती है। और अगर आपके पास जपा माला नहीं है तो आप हाथ पे भी कर सकते हैं। वो हाथ पे किस प्रकार से, कि आपको 108 बार बस हाथ पे किस तरीके से काउंट करना है। तो काउंट करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, कि अगर आप अपना दाहिना हाथ लें और बाहिना हाथ, तो दाहिने हाथ में आपके पास जो 4 उंगलियां हैं, उस 4 उंगलियों में आपके पास 3 लाइंस हैं, और जो बाहिने हाथ की अगर आप 3 उंगलियां लें, पहली वाली उसमें भी 3 लाइंस हैं, तो इधर 4 गुनी 3 12, और उधर 3 गुनी 3 9, तो 12 गुनी 9 108। तो अगर हम अपने लेफ्ट हाथ की जो पहली उंगली की अगर पहली लाइन पे अपने पूरे राइट वाले हैंड पे जपा करें तो वो 12 बार बनता है, तो 12 गुनी 9। तो हम इस प्रकार से अपने हाथ के ऊपर भी जप कर सकते हैं। और अगर आपको जपमाला चाहिए और अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको कोरियर भी करा सकता हूँ। तो और इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से पहले हम एक प्रार्थना करते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु को। वो प्रार्थना एक मंत्र के रूप में है। मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो जो वो प्रार्थना है वो इस मंत्र के रूप में है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो ये मंत्र हमें एक ही बार करना है अपने हमारे जप करने से पहले, और वो हम इसे इसलिए करते हैं ताकि हम में से अगर हमसे कोई गलती हो जाए इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में, तो उसे माफ कर दिया जाए और हम आगे इसको करने में और प्रोत्साहित और प्रेरित हों। तो तो अब हम इसका एक माला जप करेंगे। तो और मैं अपने आप को अनम्यूट रखूंगा, और आप म्यूट पे रह के जप कर सकते हैं। और जब आपका जप हो जाए तो आप कृपया करके अपने जूम पे अपना हाथ खड़ा कर दीजिएगा, ताकि हमको पता लग जाए कि आप में से किसका जप रह गया और किसका हो चुका, ताकि हम अपने जो सत्र है उसे आगे बढ़ा सकें। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna। तो क्या आप सबका जप हो गया? अगर किसी का जप नहीं हुआ है तो आप हैंड रेज कर दीजिए जूम पे, ताकि हम वेट कर सकें, और आप जब कंप्लीट कर लीजिए फिर हम शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। आप बोल सकते हैं हरे कृष्णा। राजदीप प्रभु, मनीषा माता जी, राहुल प्रभु, साथी माता जी, अर्पिता माता जी, और एक डीबी करके हैं। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो पिछले सेशन में, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या करा। तो हमने पढ़ा कि हम दो तरीके से ज्ञान को पा सकते हैं। तो एक है प्रत्यक्ष तरीका, जिससे हम अपने ही जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारा मनोभाव है, या फिर जिस प्रकार से हम जो हमारा मटेरियल प्रोसेस है उसके ऊपर हम डिपेंडेंट रह के एक्सपेरिमेंट करके उस पर ज्ञान पाएं। दूसरा तरीका ये था कि हम श्रुति
के जरिए जो वेद शास्त्र हैं, जो उपनिषद और वेद हैं, उनको उसको अपनाएं और जो कि अथॉरिटेटिव सोर्सेज हैं उनसे सुने, और जिस प्रकार से हम इस ज्ञान को जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसे पा सकते हैं। तो और हमने पढ़ा कि जो वैदिक तरीका है इस ज्ञान को पाने का, वो श्रुति ही है कि हम जो अथॉरिटेटिव सोर्सेज हैं उनसे सुने और उसके बाद अध्ययन करें और इस ज्ञान को पाएं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि जो ये ज्ञान है ये हमको जो परंपरा में आता है, जो कि गुरु परंपरा होती है और 4 संप्रदाय होते हैं जिसके जरिए हम इस ज्ञान को पा सकते हैं। तो कौन बता सकता है कि वो 4 संप्रदाय के क्या नाम थे जो हमने डिस्कस किए थे? आप चैट पे लिखिए या फिर हैंड रेज करके आप बता सकते हैं। जी। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं याद कि हमने अच्छा किसी एक संप्रदाय का नाम बता दीजिए, 4 नहीं तो किसी एक का नाम बता दीजिए। हैंड रेस करिए या फिर चैट पे लिखिए। राजदीप प्रभु जी से श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय एंड रुद्र संप्रदाय। Very nice, Prabhuji, Rajdeep very Prabhuji. nice. Or this is the So these perfect are the answer. 4 संप्रदायs which are authentic, जिसको मान्यता है एक तरह से। जैसे स्कूल में बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड्स आर ऑथेंटिक, इसी तरह 4 संप्रदाय हैं which are coming from Krishna, and knowledge is coming from through parampara in these 4 sampradayas. Yes, thank you so much, Rajdeep Prabhu. तो हमने जाना कि हम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में हैं, और जो ब्रह्मा जी से होते हुए जो ये संप्रदाय है और जो गुरु परंपरा है, माधवाचार्य, उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु, और उसके बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज थे, और उसके बाद श्रील प्रभुपाद, और उसके बाद जो इस्कॉन है, उसके जरिए हम इस ज्ञान को पा सकते हैं। और ये जो परंपरा है ये सीधी भगवान श्री कृष्ण तक जाती है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा और इसके बारे में जाना। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर हमको किसी से पूछना है इस ज्ञान के बारे में, इस आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, तो हम किसी दुकान के पास नहीं जाएंगे। और इस प्रकार से जैसे कि हमने सोने का एग्जांपल समझा था और सुना था कि अगर हमको सोना लेना है तो हम किसी किराने की दुकान पर नहीं जाएंगे और उनको बोलेंगे कि भैया जी सोना दे दीजिए। तो हमको पता होना चाहिए पहले कि सोना होता क्या है, हमको किस प्रकार से उसे कहाँ से लेना चाहिए। और इसी प्रकार से जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, जो भगवान के बारे में ज्ञान है, जो मेरे बारे में ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से संबंध क्या है, तो वो हमें उनसे जानना चाहिए जिन्होंने इसका आध्यात्मिक साक्षात्कार किया, आत्म साक्षात्कार किया हुआ है। और जो धीर है, धीर वो व्यक्ति होते हैं जिनकी सेंसेस एजिटेटेड नहीं होती, जो those who are not पे कंट्रोल। तो हमने इस प्रोसेस के बारे में जाना जो कि ऑथेंटिक है। और उसके बाद ठीक है, तो उसके बाद हमने जाना कि ये जो ज्ञान है हमें ये आध्यात्मिक गुरु दे सकते हैं, और वो गुरु जिन्होंने इस ज्ञान का आध्यात्मिक साक्षात्कार किया हुआ है। और हमने ये भी पढ़ा था, भगवद गीता में से एक वर्ष हमने मेंशन किया था, उसे पढ़ा था कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमको इस ज्ञान को कैसे अप्रोच करना चाहिए और क्या विधि है उसे अप्रोच करने की। तो किसको याद है वो वर्स कौन सा था, या फिर वो कौन से 3 तरीके थे जिससे जो हमें फॉलो करने चाहिए एक गुरु के पास पहुंचाने के लिए और उनसे इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए? तो कौन बता सकता है? अपना हाथ खड़ा करिए। किसी को याद है या हम भूल चुके हैं? हरे कृष्णा।
चलिए मैं हिंट देता हूँ आपको, वो भगवत गीता चैप्टर नंबर 4 से है। अभी भी नहीं याद आया आपको? ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद आप मुझे ढूंढ के बताइए कि वो क्या है। वो भगवत गीता का चैप्टर नंबर 4 और श्लोक नंबर 34 है, 4.34, और उसमें 3 तरीके बताए गए हैं। और कौन उस श्लोक को पढ़ सकता है? तो किसके पास भगवत गीता है तो क्या आप उसे पढ़ सकते हैं, भगवत गीता 4थे अध्याय के 34वें श्लोक को? हरे कृष्णा। राजदीप प्रभु, राहुल प्रभु, कैन एनीबॉडी रीड भगवत गीता चैप्टर 4 वर्स 34, हिंदी में चाहे इंग्लिश में? Yes, Prabhuji, I am opening on the internet that shloka. यस प्रभु जी। Yes, Prabhuji. Tad vidhi pranipatena परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। थैंक यू प्रभु जी। इसकी ट्रांसलेशन भी पढ़ दीजिए। Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. तो अब बताइए कि कौन से वो 3 तरीके हैं और कौन सी वो विधि में से क्या वो 3 चीजें हैं जो हमको करनी चाहिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और किस प्रकार से हमको अप्रोच करना चाहिए? ट्रांसलेशन में ही है प्रभु जी, 3 चीजें। Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. We should approach a spiritual master first. First is approaching a spiritual master. ओके, किस मूड में हमको अप्रोच करना चाहिए? To get spiritual knowledge from him. मैं आपको बता देता हूँ वो 3 वर्ड्स कौन से हैं, फिर आप मुझे बताइए इंग्लिश में वो उसका ट्रांसलेशन में क्या मतलब है। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। Yes, Prabhuji. By approaching a spiritual master, by submissive inquiries, by the rendering of service. यस, तो ये 3 तरीके हैं। ये 3 विधि हैं एक्चुअली। इसमें 3 चीजें क्या हैं? एक तो है सबमिसिवनेस, और पहली है सबमिसिवनेस, दूसरी है इंक्वायरी, कि इंक्वायर करना, प्रश्न पूछना, अपने डाउट्स को क्लियर करना। डाउट्स क्लियर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे डाउट्स हैं भी कि नहीं, या फिर हम इस ज्ञान को पढ़ना चाहते भी हैं कि नहीं। तो दिस इज सीरियस। एंड तीसरा क्या है प्रभु जी? सेवया। तो सेवया मतलब कि हमको उनकी सेवा करनी चाहिए। तो 3 चीजें हुई। वी हैव टू इंक्वायर सबमिसिवली एंड रेंडर सर्विस ऑन टू देम बिकॉज दे हैव सीन द ट्रुथ, एंड वो हमें इसके बारे में बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं इस चीज को इसका साक्षात्कार किया हुआ है, और उन्हीं से हम इस चीज के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये जो विधि है ये भगवत गीता में स्वयं आती है और भगवान स्वयं बताते हैं कि इसको पढ़ने का तरीका ये है। सो दिस इज व्हाट वी शुड डू, एंड हमने यही पढ़ा था। और अब हम क्वेश्चंस के आगे चलेंगे। सो नाउ वी आर, ये जो पहले जो 3 क्वेश्चंस हैं, ये दीज आर बेस्ड ऑन डिस्कवरी। ये आपके जो उत्तर हैं ये हमको इसी में से मिलेंगे जो हमने अभी स्लाइड्स देखी और उसके बारे में पढ़ा। तो अब आप मुझे ये बताइए, हैंड रेज करिए कि कौन इसका आंसर देना चाहेगा। मेंशन 2 ways in which we can obtain knowledge। हमने अभी पढ़ा इसके बारे में। हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। प्रभु जी, I think that प्रत्यक्ष and श्रवण। प्रत्यक्ष एंड श्रुति, श्रवण। यस प्रभु जी, यस यू आर राइट। और प्रत्यक्ष इज खुद ट्राई कर सीखना, एंड श्रुति इज हमें शास्त्रों से पता लगना, या फिर हमें स्पिरिचुअल मास्टर से पता लगना। सो यस, देयर आर 2 ways। सो ये 2 तरीके हैं। और सेकंड क्वेश्चन इज हाउ हैव द वेदास कम डाउन टू अस, कि जो वेद हैं वो हमारे पास कैसे आए और हमें किस प्रकार से मिले।
इसका उत्तर कौन देना चाहेगा? राहुल प्रभु, वुड यू लाइक टू आंसर? और साथी माता जी और मनीषा माता जी। हरे कृष्णा। आप मैसेज पे भी लिख सकते हैं माता जी। ये तो अभी Okay. हमने पढ़ा, जो प्रभु जी का ऊपर आंसर दिया हुआ है प्रभु जी ने चैट में, उसके रिलेटेड ही है। मनीषा माता जी saying through gurus. Okay. Okay. Mata ji, it is little incomplete, so you have to complete it through gurus. But how? So it is 50% complete. Vedas are actually Vani of Lord Vishnu. Okay. Okay. So how they are coming down to us, Prabhu ji? हमें कैसे मिले? हमें कैसे मिले? हमारे तक कैसे पहुंचे? और हमें किस प्रकार से लेना चाहिए उनको, ये भी हो सकता है प्रश्न। इसको दूसरा तरीका ये है कि ये प्रभु जी के आपके उसमें ही है आंसर, जो ऊपर मनीषा माता जी saying spiritual guru. Okay, yes माता जी, spiritual guru, right? But okay, the question is, अच्छा, तो कौन सा spiritual guru सही है? हमें ये कैसे पता लगेगा? हमने अभी पढ़ा था कि क्या गुरु सही है या नहीं है, उसका क्या प्रमाण है? This is very important. Yes, Rajdeep Prabhu ji is saying we have received it through Guru Parampara. Very nice, Prabhu So ji. Thank you Vedas so are much. coming down to us through Guru Parampara. हमने एक पिक्चर देखी थी ना, जिसमें कृष्णा and then Brahm, because we are in Brahm Gaudiya Sampradaya, so it is coming from Brahma ji and then Narad Muni ji and then various spiritual masters. Then Srila Prabhupada. ये देखिए, ये पिक्चर भी डिपिक्ट करती है गुरु परंपरा. So this is how we should receive and we have received the Vedas. और जो वेद हैं वो शास्त्रों में ही मेंशन्ड है कि वो जो भगवान विष्णु हैं, उनकी जो ब्रीदिंग है, उनकी ब्रीदिंग से जो वेद हैं वो आते हैं. And because Lord Vishnu or Lord Krishna, there is no difference because they are omnipotent. वो किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं. तो उनकी जो ब्रीदिंग है, उनकी ब्रीदिंग से भी जो वो वेद हैं वो आ सकते हैं और वो आए हैं. So Sathi Mataji is saying through by Guru. So Yes, जैसे Mataji. हम सिर्फ अपनी आंखों से देख सकते हैं या फिर हाथों से काम कर सकते हैं, बट भगवान के साथ ऐसा नहीं है. भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से, वो आंखों से प्रसाद पा सकते हैं. जब हम ऑफर करते हैं प्रसाद, भोगा ऑफर करते हैं, तो जो प्रसाद भगवान पाते हैं, भगवान सिर्फ अपनी दृष्टि से ही वो पा लेते हैं. ऐसे ही वेदास जब आते हैं तो भगवान सिर्फ भगवान की थिंकिंग से ही वेदास जनरेट हो जाते हैं. So it get revealed within the heart of Brahma ji. Yes. And the third question is, who should we hear the Vedas from? हमें किससे सुनना चाहिए? पहला क्वेश्चन था कि अगर हमको श्रुति सुननी है तो हमें किससे सुनना चाहिए और कौन प्रमाणिक है? तो इसका उत्तर क्या है? आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं और आप अपने आप को अनम्यूट रख सकते हैं पूरे सत्र के लिए. किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी. Yes, Rajdeep Prabhu ji is saying from a bona fide spiritual master. Yes, Rajdeep Prabhu, you should you're hear right. Vedas from the ones who have realized them. So जैसे कि हमने पढ़ा कि जो जिनको खुद को realization हुई है, only they can impart that knowledge within our heart. सिर्फ उनकी मर्जी से ही हमें वेदास समझ आ सकते हैं. जैसे कि हमने सुना कि प्रश्नेन प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि उनको इंक्वायरी करके after approaching them submissively and then inquiring from them and then doing service to them, only then we can get some light of this knowledge. Yes. So इसके ऊपर किसी का कुछ प्रश्न है? क्या किसी कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? इन तीनों में से किसी के भी ऊपर या फिर कोई डाउट अभी तक के सेशन में? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं.
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे अगले प्रश्न हैं, दे आर फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, कि हमें किस प्रकार से समझ आया। तो ये थोड़े से उच्च श्रेणी के प्रश्न होंगे जो कि हमको सोचना पड़ेगा, और ये सीधा आंसर हमको नहीं शायद मिलेगा जो हमने अभी पढ़ा, बट इसमें हम चर्चा जरूर करें। तो जो पहला प्रश्न है वो क्या है? विद एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड ऑन अवर ओन। एग्जाम्पल देके बताइए कि हम स्वयं भगवान की जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्यों नहीं पा सकते अपने आप से, और क्यों। तो क्या कोई आंसर देना चाहेगा? ये हमने पढ़ा है आज भी और पिछले सत्र में भी पढ़ा था इसके बारे में, कि ऐसा क्यों है कि हम अगर अपनी तरीके से ट्राई करें भगवान को खोजने के लिए तो ऐसा, और उसमें प्रूफ करें कि यस कुछ ऐसा कुछ है, तो वो जैसे कि हमें 2 टाइप से हमने पढ़ा कि नॉलेज मिल सकती है, प्रत्यक्ष एंड सो कौन बताएगा? हरे कृष्णा। Manisha Mataji is saying we are not aware of him, no proper knowledge of him. Yes, Mataji, that is right. But the question is, even if we are now aware, why we cannot understand on our own? So yes, it is right up to some part. Rajdeep Prabhuji is saying it because of material imperfections in us. Yes, you're right. So Manisha Mataji is also right in one sense that yes, because हमें उनके बारे में पता ही नहीं है, तो जिसके बारे में बिल्कुल ही नहीं पता उसके बारे में आगे कैसे जान सकते हैं. So yes, Manisha Mataji, you're right in that sense. And RC Prabhuji is saying because of material imperfections, right? कि अगर हम किसी भी प्रकार से अगर हम अंडरस्टैंडिंग पाना चाहेंगे भगवान की, तो वो हम अपने ही इंद्रियों के हिसाब से या फिर हम जिस प्रकार से सोचते हैं, जहाँ तक हमारी थिंकिंग जा सकती है हम वहीं तक उसके बारे में सोच सकते हैं, but that will be limited to our own intelligence and mind, और which is also material. जो भगवान है वो material नहीं है, वो spiritual है. So we cannot understand anything spiritual from anything material, because जो इंद्रियां हैं, जो senses हैं, they are material, and भगवान is spiritual, भगवान is सच्चिदानंद. So like that. और जो अगला प्रश्न है उस पे चलते हैं. Which literature give us real knowledge about God? Why are these literatures perfect? तो आप दीजिए उत्तर कि कौन सा जो शास्त्र है, कौन से लिटरेचर हैं give us real knowledge about God? Vedas, Ved. Yes, Prabhu ji. और why are these literatures perfect? Arpita Mataji, would you like to answer? अगर कोई किसी का प्रश्न है तो हम डिस्कस भी कर सकते हैं उसके अलावा. Manisha Mataji is saying it is perfect because God created it. Very nice. God created us also, Mataji. But we are imperfect. But yes, Vedas are perfect because. Yes, so it is because it is not that you're right because that it is authorized and non-different from God. Yes, you're also right, and Manisha Mother is also right that because God created it, and because as we discussed in last session also, we are having 4 defects, but Vedas are free from those defects because they are coming directly from God, and there is no human touch to it, and or even if there is, they are all from authorized sources or authorized group of people. So like that. Rajiv Prabhuji is saying because it is authorized and non-different from God. Yes. तो जो वेद हैं और उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं होना है, और जो
और जो श्रीमद् भागवतम है वो भगवान का जो लिटरेरी इनकारनेशन माना जाता है। तो जो श्रीमद् भागवतम है वो भागवत पुराण भी इसको बोलते हैं। जो 18 पुराण है उसमें से जो 18वां पुराण है उसमें श्रीमद् भागवतम आता है। जो श्रीमद् भागवतम है वो श्रील व्यासदेव जी ने कंपाइल किया है और हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो वेद हैं वो वेद बहुत वेद 4 हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद और एक और वेद है, अब मैं नाम ऋग, साम, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद, यस। तो और उसके बाद जो ये वेद हैं ये इतने ज्यादा वास्ट हैं और इनको पढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे वेदों में 1 लाख गुना 1 लाख वर्सेस हैं। देयर आर 1 लाख into 1 लाख वर्सेस। इस तरीके से जो पूरा शास्त्र है वो इतना ज्यादा है और सब प्रकार की जो साइंस है, जितनी भी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है सब उसमें है। और उसके ऊपर एक जो वेदों का जो सारा सार है वो है वेदांत सूत्र। बट जो वेदांत सूत्र है वो है अफोरिज्म्स की फॉर्म में। अफोरिज्म्स बोल सकते हैं कि जैसे कि फॉर्मूलाज, जैसे कि एक लाइन के, जैसे अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। बट उसकी व्याख्या करना जो आम व्यक्ति है उसके बस में नहीं है, उसके लिए उसकी एक्सपेंशन करना उसके बस में नहीं है। तो इसके ऊपर हमको जो हम आचार्य होते हैं उनको टीका पढ़ना होना बहुत जरूरी होता है। तो जो वेदांत सूत्र है, वेदांत सूत्र की जो उसके ऊपर जो नेचुरल कमेंट्री लिखी गई है, जो टीका लिखा गया है वो है श्रीमद् भागवतम। तो और जो श्रीमद् भागवतम है वो उच्च श्रेणी का, सबसे उच्च श्रेणी का जो पुराण है वो श्रीमद् भागवतम है और 18वां पुराण है। और भगवत पुराण जिसमें भगवान के बारे में, उनकी लीला, उनकी एक्टिविटीज के बारे में बताया गया, सारा वर्णन किया गया और बहुत ही वास्ट है। 18,000 वर्सेस में आता है श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। वो भगवान का श्रीमद् भागवतम भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन माना जाता है। और दैट इज व्हाई ऑल दीज वेदास एंड ऑल दिस, ये जो शास्त्र हैं, दे आर ऑल्सो परफेक्ट। और भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं, उपनिषद में आता है। और सारे उपनिषद और सारे वेदों का जो सार है वो भगवत गीता में है। और पर जो वेदों में भी नहीं है वो भी भगवत गीता में है। ऐसा माना जाता है कि वेद जो हैं, वो जो शास्त्र, जो जितने भी वेद शास्त्र हैं, उसका जो सारा ज्ञान है वो भगवत गीता में है। और उसकी जो क्रीम है, जो हमको पता लगाना चाहिए, वो भगवत गीता में बताया गया है। प्लस वो भी है जो वेदों में नहीं है। सो इट इज वेदास प्लस मोर, तो ऐसे बताया जाता है जो इस गीतोपनिषद के बारे में। और ये हमको ज्ञान देता है भगवान के बारे में और हमारे संबंध के बारे में और हमारे बारे में। जैसे कि ये ज्ञान जैसे हमने पढ़ा कि स्पिरिचुअल मास्टर की मर्सी के बिना नहीं मिलता है, ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो जैसे वेदास सब संस्कृत में है एंड दे आर इन डिफरेंट लैंग्वेज, बट अगर श्रीला प्रभुपाद की मर्सी नहीं होती तो हम नहीं समझ पाते। अब अगर हम समझ पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं, इट इज बिकॉज ओनली मर्सी ऑफ वैष्णव्स, मर्सी ऑफ गुरु। सिर्फ उन्हीं की कृपा से हम ये समझ पा रहे हैं। So I hope you are able to understand. तो आगे बढ़ते हैं। So our next question is, who can really understand Bhagavad Gita? Why? ये हमने आज नहीं पढ़ा, बट ये हमने पिछले सेशन में इसे किया था, इसके बारे में पढ़ा था कि कौन है जो भगवत गीता को समझ सकता है और क्यों। तो इसका उत्तर कौन दे सकते हैं? किसी को याद है? Only devotee of Lord Krishna can. Yes, Rajdeep Prabhuji is saying Prabhuji. that only devotees of Lord Krishna can understand. So Prabhuji is right that भगवान स्वयं बताते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के 55th श्लोक में कि भक्त्या माम अभिजानन्ति, कि केवल जो भक्त हैं वो मुझे जान सकते हैं। क्योंकि और ऐसा क्यों है?
कि ऐसा क्यों है कि जो भक्त हैं सिर्फ वही जान सकते हैं और वही समझ सकते हैं भगवद गीता को। देखिए जो इसका उत्तर है वो Understand. The person is not materialistic can understand Bhagavad Gita. So Mataji is saying कि materialistic person नहीं जान सकते Bhagavad Gita. I understood right. Yes Mataji, to some extent you're right, okay, but जो इसका जो right answer है which is it is that कि all answers are right but the one which I was looking for is that कि जो भक्त होते हैं वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि भगवान भी बताते हैं भगवत गीता में अर्जुन को कि बिकॉज यू आर नेवर एनवियस ऑफ मी आई एम इम्पार्टिंग दिस नॉलेज ऑन टू यू, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते और यू आर नेवर एनवियस ऑफ मी। Because devotees surrender to Krishna and accept his lotus feet. Yes, Prabhuji, yes, Rajni. So this after surrender only knowledge gets started to get imparted. So surrender के बाद ही भक्त ये नॉलेज ले सकते हैं या कृपा से पा सकते हैं। So जैसे भगवान कहते हैं कि ज्ञान के थ्रू भी या फिर बहुत पढ़ाई करके या फिर बहुत अपने तरफ से एफर्ट करके भगवत गीता को नहीं जाना जा सकता जब तक वो भगवान के शरणागत नहीं होते या फिर जब तक भक्ति के अलावा किसी भी माध्यम से भगवत गीता को नहीं जाना जा सकता। Correct. So now we come to fourth question. Why should we be selective in whom we hear the Bhagavad Gita from? तो ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का मतलब ये है कि हमें सिलेक्टिव क्यों होना चाहिए कि हमें भगवद गीता किससे सुननी चाहिए। तो जो पहला प्रश्न है उसमें वो ये आता है कि हमें भगवद गीता किससे सुननी चाहिए और उन्हीं से क्यों सुननी चाहिए और किसी से क्यों नहीं। ये हमने पढ़ा है आज। हरे कृष्णा। तो इसका जो उत्तर है वो ये है कि why should we be selective, क्योंकि अगर हम भगवद गीता किसी और से सुनते हैं जिन्होंने अगर हम उनसे सुनते हैं जो भगवान के भक्त नहीं है और जिन्होंने अपनी ही इंटरप्रिटेशंस उसमें डाल रखी हैं, जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं है जैसे या फिर जो नहीं जानते कि भगवान स्वयं कौन है और जो किसी सेल्फ मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशन के साथ भगवद गीता के ऊपर टीका लिखते हैं, अगर हम उनसे सुनते हैं तो it's a bit risky because this knowledge can only be understood or can only be realized from those who are devotees or from those who themselves have understood. और अगर हम किसी और से ऐसे किसी उनसे सुनेंगे जो इसको अच्छे से नहीं जानते, so that will not be bona fide. First is that will not be bona fide और दूसरा उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, वो सिर्फ ज्ञान बन के हमारे पास रह जाएगा बट हमारे में कोई चेंज नहीं आएगा, हमारे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देयर विल बी नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। सो अगर हम किसी और से उनसे सुनते हैं जो बोनाफाइड नहीं है एंड अगर परंपरा में नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे तक नॉलेज सही पहुंच रही है या नहीं, बिकॉज ऑथेंटिसिटी इज अ सॉर्ट ऑफ कि हमें श्योरिटी है देन कि जो हमारे तक नॉलेज पहुंच रही है अगर परंपरा से आ रही है तो वो सही ज्ञान है। So Rajdeep Prabhuji is writing, as there are many translations we should hear Bhagavad Gita only from authorized source. Yes, understood the way Arjuna as there are many translations of Bhagavad Gita, we should try to understand the way Arjuna understood it. So Arjuna understood and we should try the way it is as it is. So जैसी भगवान ने बताई कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर, उसी प्रकार से जिस प्रकार से अर्जुन ने समझी
तो उसी प्रकार से हमको समझनी चाहिए। दैट इज वाई भगवद गीता एज इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। और भगवद गीता जो यथारूप है, यही डिफरेंस आता है इसमें और अगर किसी और में करें। क्योंकि आप देखिए जो ये भगवद गीता है, ये पूरे विश्व भर में इसकी करोड़ों जो कॉपीज हैं वो बिक चुकी हैं, और इसको करोड़ों जो लोग हैं उसे पढ़ते हैं। और अब देखिए इससे पहले भी जो भगवद गीता होती थी, इससे पहले भी आप विश्वास नहीं करेंगे, देयर वर मोर देन 500 प्लस कॉपीज और ट्रांसलेशन ऑफ भगवद गीता बिफोर Prabhupada, Srila Prabhupada wrote Bhagavad Gita as it is. But those 500 plus translations could not make even a single devotee of Lord Krishna. But this one Bhagavad Gita has made millions all over the world, and this is the proof. And जो सबसे बड़ा proof वो हमको उससे मिलता है जब हम स्वयं उसे पढ़ते हैं, और जो भक्त हैं उनके 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 साथ आकर उसे डिस्कस करते हैं। हरे कृष्णा। नो प्रॉब्लम साथी माता जी, नो प्रॉब्लम। नेटवर्क आता जाता रहता है, सो नो इश्यूज। हमारे पास ये रिकॉर्ड हो रहा है और हम ये यूट्यूब में डाल देंगे, तो अगर आपको कुछ मिस नहीं हुआ है तो आप उसे देख सकते हैं। आप आए वही बहुत धन्यवाद आप सबका। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। So we will quickly wind up. We are running out of time. So last question है वो ये है जो एप्लीकेशन के साथ है, जो आपको उत्तर करना है। Have you found a path which will take you to God? Share your realization. कि क्या आपने अब तक ऐसा कोई जो पथ है उसे ढूंढ लिया है जो आपको भगवान तक लेके जाएगा? आप अपना साक्षात्कार बता सकते हैं। तो क्या आप में से कुछ बता सकते हैं? जो मनीषा माता जी, राहुल प्रभु, राजदीप प्रभु, साथी माता जी, कि क्या आपको कुछ पता लगा है कि भगवान के बारे में, और कि ऐसा कुछ क्या आपको कुछ मिला है जो आपको भगवान तक लेके जा सकता है? क्या आपको ऐसा कुछ रास्ता दिखा है? हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। प्रभु जी, I think that Hare Krishna Mahamantra is the path through which one can reach God in this age of Kali Yuga. Yes, Prabhuji. Yes Prabhuji, very nice. So every time we are chanting, हर बार जब हम हरि नाम का जप करते हैं, हम भगवान से कनेक्शन बनाते हैं उस टाइम। तो एक जप में 16 भगवान के नाम होते हैं, तो हम 16 बार एक राउंड में कनेक्शन बनाते हैं भगवान के साथ। So भगवान को हर समय याद करते हैं। और कौन कुछ बताना चाहेंगे अपने रियलाइजेशंस के बारे में? कृष्ण भावनामृत में आके आपको कैसा लग रहा है, आप ये भी बता सकते हैं। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन यही है कि अगर आप कृष्ण भावनामृत में आके अगर आपको कुछ साक्षात्कार हुआ है, या फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये पथ है जो मेरे को भगवान तक लेके जा सकता है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में आने के बाद क्या आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया हो, या फिर कोई बहुत बड़ा चेंज या छोटा सा चेंज कुछ आया हो? ओनली हरे कृष्णा महामंत्र हमें अगर जब करते तो रिजल्ट बहुत जल्दी दिखाई देगा। Yes Mataji, that is right, that we just keep on chanting the Hare Krishna Mahamantra and soon and जैसे हम जप करेंगे। क्या होता है माता जी, जैसे कि अगर कोई बहुत देर से भटका हो, तो अगर लेट्स सपोज कि हम कहीं गुम हो जाए बहुत देर, और हम वापस से अपने मदर या फादर के पास जाने की कोशिश करें, तो अगर हम एक कदम उनकी तरफ बढ़ाएंगे, तो वो सब भूल के आगे से 2 कदम या 3 कदम बढ़ाते हैं। तो ऐसा ही भगवान के साथ हमारा होता है कि जैसे कि हम बहुत जन्मों से भटके हुए हैं, पता नहीं कितने जन्मों के बाद हमें ये भक्ति का अवसर मिला है। तो जब हम एक कदम बढ़ाते हैं भगवान की तरफ, तो आगे से भगवान और ज्यादा कदम बढ़ाते हैं, और वो हमें अपनी तरफ और जाने का प्रोत्साहन देते हैं, बिकॉज वो यही चाहते हैं कि हम वापस से उनकी तरफ जाएं। सो इसलिए हमें बहुत हेल्प मिलती है, एंड वी
we feel that realization and हमें वो एहसास होता है कि हमें कितना परिवर्तन आ रहा है. और मनीषा माता जी इज राइटिंग, यस प्रभु जी, आपके जरिए हमको बहुत चेंज मिला है. साथी माता जी इज राइटिंग, और आपकी क्लास से पहले हम ये नहीं जानते थे कि कैसे हम भगवान के रास्ते पर चलना होगा. सो थैंक ऑल यू माता जी एंड प्रभु जी. थैंक यू सो मच. यू मोस्ट वेलकम माता जी, बिकॉज ये जो हमारे सीनियर डिवोटीज हैं और जो श्रील प्रभुपाद हैं और जो आचार्यगण और जो वैष्णवगण हैं, उन्हीं की कृपा से हम इसको कुछ शुरू कर पाए. और आप देखिए, आप सब सिंसियर जो डिवोटीज हैं वो हमारे संग में जुड़े. हम तो कोई नहीं सोच सकता था कि ये कोविड के टाइम में हम ऐसा कुछ शुरू कर सकते हैं. और अब देखिए, साथी माता जी मुंबई में हैं, राजदीप प्रभु मुजफ्फरपुर में हैं, राहुल प्रभु बिहार में हैं, अर्पिता माता जी पुणे में हैं, मनीषा माता जी आप कहाँ से हैं? बैंगलोर से. बैंगलोर. बेंगलोर. या कर्नाटका. बैंगलोर. यस. तो अब देखिए, भारत के हर कोने से अब हम सब जुड़े हुए हैं, और जो जुड़ने का जो एक जरिया है, जो एक मात्र है, वो हरि कथा है, वो भगवान की चर्चा, जो भगवान का जो ज्ञान है, जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, उसके ऊपर ये चर्चा है. और ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो पाथ है, जो प्रभुपाद ने हमको दिया है, उसको वो हम सबको इकट्ठा लेके आ रहा है. आप देखिए, आप हर हफ्ते हमारे साथ आते हैं और जुड़ते हैं, और आपको इस समय में और बहुत सारे अनेकों काम हो सकते थे, बट आप वो सब काम छोड़ के आप ये सुनने आते हैं, और आपको लगता है कि ये सुनना चाहिए, ये जरूरी है सुनना, इसीलिए आप आते हैं. अदरवाइज और तो कोई रीजन हो नहीं सकता. माता जी सिंह, अगर ये क्लास हॉल यंगस्टर या कोई भी अटेंड करता तो डेफिनेटली हमें सही रास्ता दिखाई देगा. यस माता जी, इनफैक्ट हमारे बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं. अगर आप किसी को जानते हैं, जो इवन किड्स ग्रुप भी चल रहा है और एल्डर्स यंग आई मीन टीनेज ग्रुप भी चल रहा है, बच्चों का भी, बड़े बच्चों का भी चल रहा है. तो अगर आप किसी को जानते हैं, देन यू कैन रेफर देम, एंड इफ दे वांट टू कम दे कैन जॉइन अस. और आप अपने में से देखिए, आप किसी भी रिलेटिव्स को ला सकते हैं, और आप अपने किसी फ्रेंड को जो आपको लगता है कि हाँ सेम इंटरेस्ट रखते हो, तो आप उनको बता सकते हैं क्लासेस के बारे में, और वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं. क्योंकि जिस प्रकार से हम और आप इसका लाभ उठा रहे हैं, और इसी प्रकार से हम उनको भी इसके बारे में बता सकते हैं. तो इसी के साथ हमारा जो अगला जो सेक्शन है वो यही है कि हम दूसरों को ये क्यों बताएं, और इसको दूसरों को बताना क्यों जरूरी है. और जिस वजह से हमने भी ये जो सेशंस हैं ये शुरू करे, इसकी भी यही वजह है कि जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं. तो मैं ये भी आई विल क्विकली रैप इट अप, जितना हमें 5-7 मिनट और लेके हम इसको आगे बढ़ाते हैं. सो जो अगला सेशन है, वो अगला सेक्शन है, वो है प्रीचिंग इज द एसेंस. द प्रीचर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कृष्णा. मैं पढ़ता हूँ. If one gives the conditioned soul a chance to become Krishna conscious, all his activities are approved by the Supreme Personality of Godhead, who is extremely pleased. Following the examples of previous acharyas, all the members of the Krishna consciousness movement should try to benefit the conditioned souls by inducing them to become Krishna conscious and giving them all facilities to do so. By such activities, a preacher or anyone who endeavors to spread Krishna consciousness is recognized by the Supreme Personality of Godhead. As the Lord himself confirms in Bhagavad Gita, for one who explains the supreme secret to the devotees, devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. There is no servant in this world more dear to me than he, nor will there be ever be one more dear. तो देखिए, भगवान का ये मत है, ये मेरा नहीं है, ये हमें से किसी का नहीं है, ये भगवान का स्वयं मत है. भगवत गीता में वो ये बताते हैं कि मेरे को भक्त बहुत प्रिय हैं, पर सबसे ज्यादा प्रिय मेरे को वो है जो मेरे बारे में दूसरों को बताए. तो इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने हम सबको ऑर्डर किया है. ये जो कृष्ण भावनामृत जो मूवमेंट है वो यही है, इसका जो एसेंस है वो यही है कि हमें दूसरों को इसके बारे में बताना चाहिए. क्योंकि आप देखिए कि अगर हमको एक ऐसी खान मिल जाए जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती,
और जो दूसरों को देने से हमारा भी बढ़ जाए और दूसरों का भी बढ़ जाए, और जो कि फ्री हो, तो क्या हम उस गिफ्ट को हमको दूसरों को नहीं देना चाहिए? सो दैट इज वाई जो दैट इज वाई हम इतना एम्फेसाइज करते हैं कि हम दूसरों को इसके बारे में बताएं। और देखिए इस जो मुहिम में हम सब कोशिश करी और आप सब आए, और आप सब सिंसियर डिवोटीज जो भारत के हर एक कोने में से आए हैं, और हम सब इस तरह से जुड़ सके। और अब हम यही बस दूसरों को यही बताते हैं कि आप भी इसके बारे में दूसरों को बताइए, जो इसमें इंटरेस्टेड है दूसरों को बताइए। क्यों? क्योंकि उससे भगवान सबसे ज्यादा जो प्लीज हैं वो होते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं बताते हैं भगवत गीता में कि सबसे ज्यादा जो प्रिय है भक्तों में से वो है जो इस मेरे बारे में दूसरों को बताते हैं। तो इसी एफर्ट से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आप सबको श्रीमद कृष्ण भावनामृत के बारे में बताएं, हम आप सबको हरि नाम के बारे में बताएं, और आप सबको प्रेरणा दें कि आप भी इस प्रोसेस को ग्रहण कीजिए और अपनी जो जीवन है उसे सफल बनाइए और उसे खुश बनाइए। अगर हम इसे सिंसियरली, अगर हम इसको ढूंढ रहे थे अपने जीवन में इन उत्तरों को, तो हम देखेंगे कि एक एक करके जो सारे उत्तर हैं ये मेरे क्लियर होते जाएंगे। और जैसे जैसे मैं कृष्ण भावनामृत में अपना एक एक कदम आगे बढ़ाता रहूंगा। और बहुत ही ग्रेजुअल ये जर्नी है, कुछ ऐसा नहीं है कि हमको एक महीने में हम परिवर्तन है एक तरह से, बट इट्स अ वेरी ग्रेजुअल जर्नी एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। और आप सबको आई होप कि जो सेशंस हैं कुछ कुछ लाभ देते होंगे, और आगे भी आप इसी प्रकार से हमको प्रेरणा देते रहें कि हम ये सेशंस आगे करते रहें। तो इसी को चल के हम अपना सेशन है जो यहाँ पे इसको विराम देते हैं। और अगर किसी कुछ प्रश्न है तो आप जरूर हमसे अभी पूछ सकते हैं। तो किसी Thank you को so much for attending so sincerely. तो किसी को कुछ प्रश्न है आप में से? ठीक है, तो यहीं पे जो सेशन है उसका अंत करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतां वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। तो हम अगले सेशन संडे को मिलेंगे, और बीच में हमारे कुछ स्पेशल सेशंस भी होते रहते हैं जिनका मैं मैसेज डालता रहता हूँ ग्रुप पे, जो कि फ्राइडे को, सैटरडे को या फिर संडे को होते हैं। और इस जैसे कि कल हुआ था अभय चरण के ऊपर, तो आई होप आप सब वो भी अटेंड कर रहे हैं। और जो फ्राइडे को सेशंस होते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप गुरु अष्टकम के ऊपर जो हमको जो रसनम प्रभु ले रहे हैं उज्जैन से, और आई होप कि आप वो सेशंस अटेंड करिए, और इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। सो वी एंड द सेशन हियर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।